Hello dear student, I am Bharat sir from Thamana Education Institute. We are discussing English subject of standard 7 and today we will discuss poem number 8 Surprises written by Louis Brandt Phillips. It is a beautiful poem that shows us nature. Before we move to the poem, we must discuss some keywords of the poem. So they help us to understand the poem in a proper way. So let us discuss keywords of the poem first. So today we will see meadows, brook, buttercup, dandelion, fuzzy, explore, burrows and mounds word, and let us see with the image so we have better idea. Next, first word is see meadows. Meadow is a open grassland. Open grassland. Suppose आप ground में जाते हो तो it is a kind of meadow. See open grassland. It looks very beautiful. See the grass which grow on the earth in the open area. Next word is brook. Brook is a small stream, है ना, or river. Here example also given here, so you can state it also. See the stream or a small river we can consider, or a small stream, झरना जिसको हम बोलते हैं. See how looks it's beautiful. Next word is buttercup. Buttercup, a white plants with a yellow cup spread flower. So it is a flower, and the name of the flower buttercup, and it looks like a cup spread. See here, you can find the flower in the form of cup. तो cup के जैसा दिख रहा है. That's why it is a buttercup. So buttercups. Here you can find that the flower. Next one is dandelion, a common yellow flowered plants. So dandelion is also a plant or flower, yellow जो flowered plant होता है वो. See how it looks. उसके पत्ते भी आप देख सकते हो और आपने commonly इसको देखा ही होगा. Dandelion, it is a kind of flower or plant. Next word is a fuzzy. Fuzzy means not clear or little invisible. So here you can find the two animals, but their heads are not visible. So it is a kind of fuzzy head. Here also you can find not their eyes. Also we cannot see their mouth. Only the beak of the animal is shown here. So it is a fuzzy head. Or here you can find then the word dandelion and the different kind of dandelion. So first one is, so one is visible and little one, this one is not visible from the distance, so it kind of a fuzzy. Here you can also see that kind of flowers. And next one is explore. Explore means to discover something, explore something, discover something new. You try to discover something new. Here one person is trying to discover something new. Next one is a burrow. Burrow is a hole in the earth, जो hall बनाया जाता है different animals की तरह. mongoose है, then the rabbit है, तो that kind of hole you may have seen in the earth. So they are their homes. Next one is a mound, a small pile of earth. Small pile of earth ऐसा थोड़ा सा उपसा हुआ अर्थ का पार्ट होता है, स्पेशली इन ग्राउंड. एंड देयर आर थिंग्स दैट वी कैन फाइंड दैट द मेड बाय द ant and the other ones. So we can find that the small pile that made by the ant also, it can't mount here. So dear student, we have discussed keywords of the poem with the images. I hope you understood. Let us move to the poem Meadows Surprises. Meadows is a form of grassland.
and you can find the beauty of nature over there. Before we move to the poem, let us see what is written here. Walk across a green field, a park, or even under a clump of tree and you will notice many wonderful things. तो आप पार्क में जाओ, ग्रीन फील्ड में जाओ या फिर क्लम्प ऑफ ट्री के नीचे जाओ, आप बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें नोटिस कर सकते हो. What are some of the surprises a meadow has for someone with a knee eyes and a sharp ear? तो मीडो है वो आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस है, बट उसको देखने के लिए आपको एकदम नी आइस एंड शार्प ईयर चाहिए ताकि आप ब्यूटी ऑफ मीडो को देख सको और महसूस कर सको, सुन सको. लेट अस डिस्कस द पोएम. Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brooks. So here, dear student, meadow, you know that the grassland, and it has many surprises for you. That it looks like a velvet grass. Here you can find the word velvet grass, यानी बहुत ही सॉफ्ट ग्रास. और मीडो में आप ब्रूक्स भी देख सकते हो और उसका म्यूज़िक भी सुन सकते हो. ब्रूक यानी झरना, तो झरना जहाँ जहाँ जाता है उसका म्यूज़िक आप सुन सकते हो. सो मीडोज हैव सरप्राइजेस, यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक. मीडोज सरप्राइजेस है, मीडो के पास बहुत सारे, आप देख सकते हो, आप खोज सकते हो उसको अगर आप देखोगे उसको. वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रूक. तो आपको क्या करना है, आप सॉफ्टली वॉक कर सकते हो. कहाँ पे, वेलवेट ग्रास, यानी ग्रास को यहाँ पे वेलवेट के साथ कंपैरिजन किया गया है यानी वेरी सॉफ्ट. एंड आप ब्रूक्स का म्यूजिक भी सुन सकते हो, झरने का म्यूजिक जो होता है. यू मे सी अ बटरफ्लाई, यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप. तो यहाँ पे आप बटरफ्लाई भी देख सकते हो जो बटर कप, जो फ्लावर है उसके ऊपर बैठी हुई होती है, जो येलो कलर का फ्लावर आता है वो. एंड अनफोल्ड इज ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, तो उसकी ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, उसके मुंह के आगे का भाग जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ के जैसा होता है उसको यूज़ करके वो सिप द नेक्टर अप. यहाँ पे नेक्टर का यूज़ एज ए रस है ना, जो जूस होता है नेक्टर का यूज़ यहाँ पे एज ए जूस लिया गया है. जूस ऑफ फ्लावर विच यूज़ बटरफ्लाई है ना, यूज़ बटरफ्लाई एज देयर फूड और हनी बीज एज देयर मेकिंग हनी. तो यहाँ पे क्या करेगी, बटरफ्लाई होगी, वो बटर कप के ऊपर बैठी हुई होगी, उसकी ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है उसको अनफोल्ड करेंगी और उसमें से क्या करेगी, बटर कप में से जो हमारा नेक्टर है जो फ्लावर का वो उसको पिएगी. You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him when he hopes you will. तो यहाँ पे कहा गया है कि आप भाई रैबिट को स्केयर कर सकते हो, रैबिट को डरा सकते हो क्योंकि वो बहुत एकदम स्टील बैठा हुआ होता है. अब रैबिट होता है उसे एकदम वाइट और ब्राउनी कलर का होता है, तो एकदम स्टील बैठा हुआ होता है तो हमें पता नहीं चलता है. वी कैन नॉट फाइंड दैट द रैबिट इज सीटेड इन द ग्रास. बट जब वो हमें नज़दीक पाता है तो वो क्या हो जाता है, रैबिट स्केयर हो जाता है, हमसे डर जाता है. आप उसको फर्स्ट टाइम पे नहीं देख सकते हो क्योंकि एकदम स्टिल बैठा हुआ है. बट जब वो होप करता है यानी छलांग मार के भागता है तो उसको आप देख सकते हो. तो आप मीडो एकदम साइलेंट होती है और रैबिट को आप डरा भी सकते हो क्योंकि रैबिट एकदम सेंसिटिव एनिमल है ना, और वो कहाँ पे रहता है, इन द लैंड है ना, उसकी जो केव्स जैसा बनाता है लैंड में और वहाँ पे रहता है. और मीडोज में खास आपको देखने को मिलता है, तो रैबिट स्केयर भी हो सकता है आपसे. नेक्स्ट आंसर में क्या है, अ डेंडेलियन हुज फजी हेड वॉज गोल्डन डे अगो. तो डेंडेलियन, यहाँ पे डेंडेलियन इज अ
फ्लावर वी डिस्कस्ड इट। तो डेंडेलियन है, उसका फजी हेड वॉज गोल्डन डे अगो, यानी वो उसका फजी हेड था गोल्डन डे अगो, यानी वो गोल्डन डे थे जब उसका फजी हेड था, वो ग्रीन था और वो एकदम हरा भरा था। ही टर्न टू एरी पैराशूट्स दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो। तो वो अब किस में टर्न हो गया है? एरी पैराशूट्स में टर्न हो गया है और उसको फ्लटर कर सकते हो। फ्लटर यानी टू एंड फ्रो है ना, उसको फूंक मारोगे या फिर उसको ब्लो करोगे तो वो एकदम उड़ने लगेगा या फिर वहाँ से हिलेगा, एरी पैराशूट के फॉर्म में आ जाएगा। सो हियर यू कैन फाइंड दैट द डेंडेलियन, उसके जो गोल्डन डेज थे जब उसके फ्लावर एकदम गोल्डन थे और एकदम हरे भरे थे, और जब वो किस में चेंज हो जाते हैं, जो थोड़े से सूख जाते हैं फिर वो पैराशूट्स में चेंज हो जाते हैं, एरी पैराशूट में, जब उसको आप ब्लो करते हो और फ्लटर होने लगते हैं, स्पेशली व्हेन यू ब्लो। Explore the meadow houses. Explore the meadow houses. The burrow in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mount. तो यहाँ पे एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, मीडो के हाउसेस एक्सप्लोर करो, आप ढूंढ सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो। तो बरो, बरो कौन बनाता है? स्पेशली रैबिट बनाता है, मंगूस बनाता है ना, जो लैंड में जो गड्ढा खोदते हैं और उसमें रहते हैं। और अ नेस्ट बीनेथ अ टॉल ग्रासेस, तो भाई आप नेस्ट भी ढूंढ सकते हो बीनेथ टॉल ग्रासेस। और एंड जो अमेजिंग माउंट बनाती है ना, जो मिट्टी के टीले हम बोलते हैं ना, जो एंट अपना हाउस बनाती है उसको मिट्टी के टीले भी बोला जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो। क्या क्या देख सकते हो? एक तो आप तो बरो जहाँ रैबिट रहते हैं, मंगूस रहते हैं, नेस्ट जहाँ पे बर्ड्स रहते हो, और माउंट जहाँ पे कौन रहता है? एंट्स रहते हैं। तो ये भी आप ढूंढ सकते हो। Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover this yourself if you look and listen well. तो मीडो है, उसके पास बहुत सारे सरप्राइजेस है एंड मैनी थिंग्स टू टेल, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए आप उसको डिस्कवर कर सकते हो अपने आप से, अगर आप उसको लिसन करोगे और वहाँ पे देखोगे। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर आप अच्छे से देखोगे, अच्छे से सुनोगे, तो आप वो फील कर सकते हो, वो देख सकते हो सारी सरप्राइजेस जो मीडो ने दी है हमें और मीडो के पास है। सो यहाँ पे पोएम किसने लिखी है? वी हैव अर्लियर डिस्कस दैट पोएम इज रिटन बाय लुइस ब्रैंड फिलिप्स। सो dear student, we conclude our discussion of poem here. What we discussed in the first stanza, we see that the meadow has many surprises, velvet like grass, you can listen the brooks. सेकेंड में हमने देखा कि बटरफ्लाई है, बटर कप के ऊपर बैठी हुई है और ड्रिंकिंग स्ट्रॉ अनफोल्ड करके नेक्टर पिएगी फ्लावर में से। और थर्ड में हमने देखा कि रैबिट है, वो स्टिल बैठा हुआ होगा, अगर आप वहाँ से वॉक करोगे तो रैबिट डर सकता है। और डेंडेलियन फ्लावर है, जो फजी हेड थे उसके गोल्डन डे अगो, अब वो किस में टर्न हो जाएंगे? पैराशूट में टर्न हो जाएगा अगर आप उसको ब्लो करोगे, इसको फ्लटर करोगे। और नेक्स्ट में हमने देखा कि भाई आप बहुत सारे हाउसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो जो मीडोज में बिल्ड है ना। हाउस ऑफ रैबिट लाइक बरो, बरो में जो एनिमल्स रहते हैं वो नेस्ट फाउंड कर सकते हो। देन माउंट जहाँ पे एंट रहती है। और यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ और लास्ट स्टांजा में हमने देखा कि भाई मीडो के पास बहुत सारी सरप्राइजेस है, अगर आप ढूंढना चाहो, देखना चाहो उसको, तो आप उसको एकदम शांति से, एकदम ध्यान से, नी आइज एंड शार्प ईयर आपके होगी तो आप उसको देख और सुन पाओगे। So, dear student, we have discussed the poem and now we will move to the exercises or working with the poem. Read the lines in which the following phrases occur. हमें नीचे लाइन्स रीड करनी है जिसमें ये फॉलोइंग फ्रेजेस आए हैं जो नीचे दिए गए हैं। देन डिस्कस विथ योर पार्टनर द मीनिंग ऑफ
ईच फ्रेजेस इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो हमें पहले तो क्या करनी है, लाइंस पढ़नी है कि वेलवेट ग्रास, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ मीनिंग मीडो हाउसेस, अमेजिंग माउंट एंड फजी हेड। तो ये 5 जो फ्रेजेस दिए हैं वो कहाँ कहाँ की कौन कौन सी लाइंस पे आए हैं वो हमें पहले तो रीड करने होंगे। वी हैव टू रीड दैट्स वेयर द phrases fall down, then we will move further. Here you can find the velvet grasses. Then let us see the what is the next one. Next phrase is drinking straws. What is the third one? Third one is meadow houses. So it is here meadows houses. Meadows houses. Fourth one is amazing mount. Amazing mount is here. Then one is left. Fifth one, where is it? It is here. फॉजी हेड। तो ये हमने रीड कर लिया, ये लाइन कौन कौन सी लाइन में आए हैं वो हमने देखा। एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग। एक्चुअली यू हैव टू डिस्कस विथ योर पार्टनर, बट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस phrases. First phrase was velvet grass. The velvet grass indicates that grass is as soft as velvet. तो जो फर्स्ट फ्रेज हमें दिया गया है उसका मीनिंग होता है कि भाई ग्रास एकदम सॉफ्ट है वेलवेट के जैसा। देन नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। तो ड्रिंकिंग स्ट्रॉज मीन्स द बटरफ्लाई वुड ड्रिंक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर सेम एज इट दे ड्रिंकिंग इट विथ स्ट्रॉज। तो भाई बटरफ्लाई जो ड्रिंक करती है ना नेक्टर फ्लावर में से निकालती है, तो वो हमें ऐसे लगता है कि वो स्ट्रॉ के साथ ड्रिंक कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आगे का मुंह होता है वो स्ट्रॉ जैसा होता है थोड़ा, दैट्स वाई इट्स लुक लाइक अ स्ट्रॉ। थर्ड वन इज मीडोज हाउसेस। तो मीडोज हाउसेस क्या रेफर करते हैं? रेफर टू द हाउसेस ऑफ रैबिट, बरो ऑफ एंड एंट्स एंड एंट हिल एंड नेस्टेस। तो रैबिट, द बरोज ऑफ एंट्स। सो रैबिट किस में रहता है? बरो में रहता है। ऑफ एंट्स दैट लिव्स इन एंट हिल एंड द नेस्ट रेफर करते हैं। Next word is amazing mount. Amazing mounts means the mounts created by the ants for dwelling. तो एंट जो dwelling के लिए, अपने रहने के लिए जो माउंट्स क्रिएट करते हैं उसको अमेजिंग माउंट बोलता है पोएट हमारा इधर। फजी हेड। फजी हेड indicates the flowers of the dandelion which now floats in the air when we blow it. तो फजी हेड तो डेंडेलियन फ्लावर का जो टाइम होता है वो सर्टेन टाइम पे वो फ्लोट हो जाता है जब हम उसको ब्लो करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, वी अंडरस्टूड दिस 5 phrases. Accordingly, let us move to the next questions. Question 2 is, which line in the poem suggests that you need a knee eye and a sharp ear to enjoy the meadow? Read aloud the stanza and contains this line. तो ये हमें क्या करना है? स्टांजा को रीड अलाउड करना है और लाइन को कोट करना है, कंटेन करना है। सो लेट अस रीड द स्टांजा so we have a better idea. Here in a last stanza you can find the lines. Let us read. Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover this yourself if you look and listen well. तो यहाँ पे ये लाइन्स है वो हमने कोट करनी है in the answer. So here answer is the lines
that suggest that you need a knee eyes and a sharp ear to enjoy meadows is you may discover yourself if you look and listen well. तो ये लाइन है जो हमने कोट की है यहाँ पे. Let us move to the next question. That find picture of the kinds of birds, insect and the scenes mentioned in the poem. तो ये सब आपको खुद से करना है. Do it by yourself. Question 4 is also you have to do by yourself. What is the question? Watch a tree or a plant or walk across the field to park at the same time every day for a week. Keep a diary of what you see and hear. At the end of the week, write a short paragraph or a poem about your experience. Put your writing up on the class bulletin. और तो ये आपको करना है, कंटिन्यूसली विजिट करना है पार्क को या फिर गार्डन को और शॉर्ट पैराग्राफ या फिर पोएम लिखनी. तो यू डिड इट बाय योर सेल्फ. एंड द लास्ट वन इज it also you have to do by yourself that read the following poems. A poem about the word of nature which is as busy the word of human beings. So ये poem हमें recite करनी है खुद से. So what is the poem? That busy word. So bees are buzzing, frogs are hopping, moles are digging, there is no stopping, vines from climbing, grass from growing, birds from singing, winds from blowing, birds from blooming, bees are humming, sunbeams dancing, raindrop drumming, all the world is willing, dizzy, summertime is very busy. So ये आपको खुद से रिसाइट करनी है. So dear student, we conclude our video here. I hope you understood the poem very well. See you soon. Bye.